Hello everyone. Today we have with us Mr. Tanuj Pathak. He's secured rank 72 in the UPSC Civil Services examination. First and foremost, very congratulations. Thank you so much, ma'am. This has happened to you in the third attempt. Yes, ma'am. And I would want to know a little bit about your journey first and foremost. So I hail from a town called Haldwani, situated in Nainital district, Uttarakhand state. So I had my basic education from there itself, from Haldwani. Then I did my graduation from IIT Roorkee in metallurgical and materials engineering. And thereafter I did work in Bangalore for 2 years. And then somewhere in mid 2020s, I came back to my home and started preparation. Somewhere in mid 2020s, did COVID have something to do with your decision? Yes, ma'am. COVID was, I guess, a big factor because during COVID, I was in Bangalore. It was lockdown, and I did not had much office work to do that time because everything was closed. So I thought I could utilize this time in somewhere else. So that is where I resigned from the job and started preparation. But then UPSC का seed जो है कि this is something that I would want to do. Is it something that you discovered during your work life या it was there in the beginning also? I'm actually ये third year से in my college third year में I guess कहीं ना कहीं सोचना शुरू किया मैंने कि UPSC के भी attempt देना है because I had certain seniors alumni थे कॉलेज के तो IAS IPS जो विजिट करते थे तो I had some interaction. कुछ सीनियर्स प्रिपेयर करते थे उस टाइम तो कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ एक ना एक बार दूंगा ज़रूर. तो उसके बाद प्लेसमेंट हो गया. आई थॉट आई शुड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और थोड़ा घूमना फिरना भी था ही तो इसलिए 2 साल जॉब करी उसके बाद अटेम्प्ट देना. Because see, आजकल the discourse has also shifted towards कि बैकअप होना चाहिए नहीं होना चाहिए. So coming from a point कि हाँ you're coming from a prestigious college and you do have that opportunity. So it does make sense to be a little more practical. Because it is very unpredictable for sure. Yes, right. And talking of unpredictable, what about prelims? What is your strategy and what is your way of tackling prelims? For me, ma'am, I think in all my 3 attempts, I have cleared all the 3 prelims I have cleared. So I think for me, a very basic thing that was working is firstly revise your NCERTs and textbooks, whatever, for all the subjects again and again. So multiple revisions is necessary. Secondly, I think current affairs should be one thing which must be focused upon. I used to read 2 newspapers, Hindu and Indian Express, and so these are my sources. And thirdly, I think the most important thing is practicing test papers. So I used to solve more than 50-60 full-length test papers. So if you have time, I think one should solve as many as they can or as many as are possible. And finally, I think PYQs should be one of the most important thing to focus upon because they are the guiding light in which direction one must study. So I think these 4 things I had on my priority and multiple revisions and practicing a lot. So I think that was the key for me to clear prelims. As for mains, the second stage of the exam, your marks are fairly distributed among the different subjects, which seems a very stable approach. What I would want to ask you is कि what was your strategy कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए across different subjects? बताइए. तो मैम मेरी अप्रोच ये रहती थी कि 2-3 चीज़ें रहती थी मुझे इसमें. तो एक तो था कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करना है तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से मैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करता था. हफ्ते में एक कर लिया स्टार्टिंग में और मेंस के टाइम तो खैर देयर इज नो नंबर. जब पहला मेंस लिखा था तो वक्त पे पेपर खत्म होता था? इनिशियली नहीं होता था. इनिशियली मेरे को याद है, मैंने आज भी याद है, पहला टेस्ट पेपर लिखा था तो आई गेस आई वाज एबल टू डू 15 क्वेश्चंस ओनली. 3 घंटे 15 से ज़्यादा नहीं हो पाया मेरे से और उसमें मेरे नंबर ही 50 नंबर आए थे. तो एक बहुत बड़ा झटका लगा था मुझे कि इतने कम आ रहे हैं तो ऐसे कैसे हो चलेगा. फिर ग्रेजुअली 15, 16, 17, 18 हुए. धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करी, बहुत प्रैक्टिस करी और आई गेस मीन्स आने तक 20 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पा रहा था. वही, लेकिन 2.5-3 महीना लगता है. इजीली ज़्यादा लगता है. 2.5-3 महीना भी कम बोलूँगा मैं तो बोलूँगा कि प्रीलिम से पहले ही आप 5-6 फुल लेंथ टेस्ट पर लिख के देख लीजिए मेंस वाले भी, क्योंकि 3 महीने जो प्री और मेंस के होते हैं दैट आर इनफ फॉर आंसर राइटिंग. में मना नहीं करता उस चीज़ को, बट अगर आप पहले से आपका बेस बना हुआ है कि हाँ आंसर राइटिंग ऐसे करनी है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है उन 3 महीने में. तो स्टार्ट अर्ली, जो आप प्रिपेयर वाला टाइम है प्री से पहले ही 5-10 पेपर मेंस के भी देख लीजिए एंड देन प्री और मेंस के बीच में तो आपको टेस्ट देने हैं जितने मैक्सिमम हो सकेंगे आपको देने हैं. बिल्कुल ठीक है. तो एक तो ये हुआ. अच्छा, और क्या स्ट्रेटजी है आंसर राइटिंग सुधारने के लिए?
इस बार की अगर मैं बताऊं मैंने इस बार मैंने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो होता ही है, हाँ जी। तो मैंने ये अप्रोच रखी थी कि मैं थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आऊंगा अपने आंसर्स में, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे कंक्लूजन हो, या बॉडी पार्ट हो, तो तीनों में ही कुछ ना कुछ मैं यूनिक करने की कोशिश करता था। कंक्लूजन स्पेशली मतलब ऑब्वियस टॉपर से ही उठाया मैंने भी ये चीज़, तो खुद का मेरा नहीं है। तो कंक्लूजन में 3-4 दो मतलब आई यूज्ड टू राइट 6-7 लाइंस का कंक्लूजन, अच्छा खासा 6-7 लाइंस का हाँ। कंक्लूजन व्हिच इज क्वाइट लॉन्ग। हाँ, तो उसमें 2-3 लाइन में समरी और 2-3 लाइन में फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखाया है, वे फॉरवर्ड जो भी जैसी। हाँ वे फॉरवर्ड जैसी, या फिर एंड किया कुछ स्लोगन के साथ, कुछ कोट के साथ, विच लुक्स गुड, पॉजिटिव दिखता है वो चीज़, और अच्छा भी लगता है कि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है चीज़, तो वो करने की कोशिश करता था। इंट्रोडक्शन में कुछ यूनिक, कुछ डेटा पॉइंट ऐड कर दिया, एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में ऐड कर दिया, या कोई हिस्टोरिकल एंगल दे दिया, तो कुछ यूनिक करा। इन बॉडी आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैं चाहता था कि थोड़ा भरा भरा दिखे मेरा पेज, और उसको फिर एग्जाम्पल्स, हर एक स्टेटमेंट को सपोर्टिंग बाय एग्जाम्पल्स सपोर्ट करना, डेटा से सपोर्ट करना, डायग्राम्स का बहुत यूज़ करना, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना, तो हम ये चीज़ ऐड करी मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा। डायग्राम और फ्लो चार्ट में व्हाट आई हैव टू कीप ऑन डिस्कसिंग इज कि भाई अगर आपका वो आंसर शीट होता है तो डायग्राम का साइज कितना होता है? जनरली छोटा ही होता है है मैम, ना? जनरली छोटा होता है, और मैं प्रेफर करता था कि साइड में एक बॉक्स हाँ। बना के उसमें मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, और इधर लेफ्ट मार्जिन पे लेफ्ट अलाइनमेंट में अपना लिखूँ और इधर डायग्राम बनाऊँ, तो उससे अच्छा लगता है वो कि क्योंकि मेन में असल में आपके पास स्पेस ही लिमिटेड है ना। हाँ। अब आदमी अगर 6 पॉइंट भी लिख रहा है, डायग्राम भी बना रहा है, तो जगह खत्म होगी। 6 लाइन का तो कंक्लूजन है। राइट। उस तरह की चीज़ है, बिल्कुल। अच्छा, इतना अच्छा आंसर लिखने के लिए जब कंटेंट बटोरने की बात हुई तो स्टैंडर्ड सोर्सेज तो ठीक है, लेकिन फॉर योर बैच एआई टूल्स और जीपीटी और जेमिनाई और ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, आपने उसका कैसे यूज़ किया, और अगर किया भी? किया मैंने टुवर्ड्स आई गेस मेंस के एंड के टाइम पे ज़्यादा मैंने जो टॉपिक्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल नहीं हैं कोई सोर्सेस में, या कुछ नया कुछ आ रहा है, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ना उनके जो स्टैंडर्ड सोर्स में उतने बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं होते हैं, तो वो मैं जनरली चैट जीपीटी से हेल्प लेता था। और स्टार्टिंग में चैट जीपीटी था, जेमिनाई तब आया नहीं था, और मुझे आज लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है चैट जीपीटी से, तो उस टाइम वो आया नहीं था, तो चैट जीपीटी का काफ़ी यूज़ करता था उन टॉपिक्स के लिए जो कि स्टैंडर्ड बुक्स या गूगल में अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से तो चैट जीपीटी में ये था, अभी जो मुझे तो मैंने चेक नहीं किया उस टाइम क्या होता था, आंसर्स अच्छे देता था चैट जीपीटी, बट वो एग्जाम्पल्स डेटा पॉइंट उससे सपोर्ट नहीं करता था, एक बहुत जेनरिक आंसर बना के देता है चैट जीपीटी से आंसर लिया और फिर गूगल के थ्रू उसको थोड़ा वैल्यूएट किया, उससे अपने आंसर्स बनाए। मतलब वही सिलेबस कंप्लीट करना है तो हर हथकंडे से कंप्लीट हाँ बिल्कुल, और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा सोर्स है इस समय चैट जीपीटी, स्पेशली जेमिनी, क्योंकि जेमिनी के आंसर्स चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा बेटर मुझे लगे हैं। तो जेमिनी का यूज़ आई गेस लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल सब कुछ देता है, उसके सब कुछ ऐड कर देता है आपको, तो जेमिनी ज़्यादा बेटर। बट आपके बैच में और जो अभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसमें बस एक हल्का सा फर्क होगा, आपके पास वो ऑप्शन आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर आंसर राइटिंग, आखिरी महीना में है ना? और अगर पहले आया होता तो फिर प्रैक्टिस में थोड़ा रिस्क हो सकता है कि मतलब आप खुद ही क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी करें। डू यू सी द रिस्क देयर? हाँ राइट मैम, वो तो खुद है की एबिलिटी पे। हाँ, क्योंकि वो आपको खाना पूरा परोस के दे रहा है, तो वो आई थिंक मैंने वही बोला मैम, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के लिए, उन्हीं चीज़ के लिए जहाँ पे कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जहाँ मटेरियल अवेलेबल है तो मैं ये मानता हूँ कि आप सारे सोर्सेज मटेरियल लीजिए और उसको हाथ से नोट्स बनाइए, या इनफैक्ट अपने जो भी ऑनलाइन नोट्स बनाइए, ताकि आप जब आप नोट्स बनाते हैं तो पहला रिवीजन वहीं पे हो जाता है और फिर बार बार उसका रिवीजन होता है। अगर आप चैट जीपीटी डायरेक्ट आंसर लोगे तो वो जो मेहनत जाती है नोट्स बनाने में, सामान इकट्ठा करने में, वो नहीं होती, तो मुझे लगता है और ज़्यादा रिवीजन की जरूरत है अगर आपने चैट जीपीटी से आंसर मन में बैठेगा नहीं वो चीज़। तो चैट जीपीटी या जेमिनी से वही आंसर है जो बिल्कुल कहीं मिल ही नहीं रहा है, मतलब तो वहाँ पे worst case scenario। हाँ, या फिर आपको लगता है कि ये आंसर जो मैंने लिखा है इससे और बेटर आंसर हो सकता है, उससे वैल्यूएट कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल सही बात है। सी अगेन दिस इज द क्लैरिटी दैट यू नो इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, आई होप। अच्छा, इस सब के अलावा एंथ्रोपोलॉजी में यू हैड अ वेरी गुड स्कोर, एंड बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलर सब्जेक्ट एंड लोग उसकी तैयारी, सोर्सेज सब कुछ समान है, लेकिन मार्क्स में कई बार फील करते हैं कि नहीं अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे नंबर आने के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक पहले तो मैं ये मानता हूँ कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट मैंने कुछ दोस्तों से बोला भी कि आपको पीएचडी करनी पड़ती है उस सब्जेक्ट में अगर आपको 300+ नंबर चाहिए था। तो इस बार मैंने शायद मैम यही किया, मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज जो टॉपर्स के नोट्स थे, काफ़ी सारे नोट्स देखे, और जैसे एक मंदार पाटकी सर हैं जो कि आई गेस 22 रैंक था 19 में, तो उनके नोट्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उन्होंने नोट्स बना रखे हैं। तो वो नोट्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे मुझे, स्पेशली पेपर 2 में।
तो वो एक चीज़ थी। और दूसरा मैम पेपर 1 के लिए मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज़ करी इस बार। काफ़ी सारी जो केस स्टडीज़ होती हैं हमारे सब्जेक्ट्स में, ट्राइबल्स की चाहे केस स्टडी हो गई थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो केस स्टडी इकट्ठा करी। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वर्क हम तो मैम क्या पढ़ते हैं, तो जो असली में काम कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं कॉपीज़, आई थिंक उन लोग को वो केस स्टडीज़ अट्रैक्ट करती हैं, तो वो उनमें कहीं ना कहीं नंबर्स मिलते हैं। तो केस स्टडीज़ हो गई, इन डेप्थ नोट्स हो गए टॉपर्स के, और यूजिंग डायग्राम्स। एंथ्रोपोलॉजी में वही जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स आप बना सकते हैं, आर्कियोलॉजी वाले पोर्शन। हाँ, तो वो चीज़ आप लिबरली यूज़ करिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट वहीं से होता है। और वो एक आंसर में एक एंथ्रोपोलॉजिकल टच लाना जरूरी है। कोई भी आंसर में आप एंथ्रोपोलॉजी के जो की टर्म्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपने आंसर्स लिखिए। मतलब हर दूसरी लाइन में आप कुछ की टर्म का यूज़ करिए, जेनेरिक नहीं लगे। बिल्कुल जनरल लगे। आप जो ऑथर्स हैं, जो फेमस बुक्स के ऑथर्स हैं, आप कुछ भी आपने कुछ भी स्टेटमेंट मत लिखिए कि इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी इस बुक में ये चीज़ कहा है और इसकी हेल्प से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैम एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम यूज़ कर रहे हैं, बुक्स कोट कर रहे हैं, उनकी डेटा यूज़ कर रहे हैं, केस स्टडीज ट्राइबल्स की जो केस स्टडी वो यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल डायग्राम्स बना रहे हैं। तो मैम वो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल फैक्टर है और वो ही मार्क्स बढ़ाता है। अच्छा, ये सब करने के बावजूद भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा, हाँ, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता एंथ्रो में हर बार का सीन है ना ये चीज़। तो अच्छा, उसका करना क्या है? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? क्या पहले तो डिड यू नो कि मैम मैंने पीएचडी के लेवल का पढ़ाई करा है, फिर भी छूट जाता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन, उसके बाद भी वो अनएक्सपेक्टेड ही रहता है। एग्जैक्टली मैम। हाँ, तो फिर उसमें लिखना है कि नहीं लिखना, छोड़ देना है कि लिख देना है उसका आंसर? मैम डिपेंड करता है। अगर मान लो वो पहला ही क्वेश्चन आ गया पेपर का, जैसे नातुफिन कल्चर 2020 में आया था, तो आई गेस वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही था, और आपने अगर वो नहीं पता और कुछ भी अंडरस्टैंड आप लिख रहे हो उसमें, तो बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा चेक करने वाले के ऊपर। तो आई गेस वहाँ पे वो छोड़ना ही समझदारी है। पर जैसे इस बार आया था एक क्वेश्चन था, ग्लोटोक्रोनोलॉजी करके एक क्वेश्चन आया था, तो दैट वाज इन 5th क्वेश्चन का डी पार्ट था मेरे ख्याल से, तो काफी लेटर ऑन स्टेज पे था वो क्वेश्चन। अच्छा, हाँ। और हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन था वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था, भाषा काल क्रम चक्र कर ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो हिंदी से कुछ कुछ इंटरप्रेट करके वो लिख दिया था मैंने, 2 पन्ना भर दिया था। इसका मतलब है कि हिंदी का वहां से हिंट लेके हम किसी तरह आंसर पीस टुगेदर कर सकते हैं, क्योंकि वो भाषा काल क्रम मतलब लग रहा है कि हाँ, भाषा इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में कुछ ये स्टडी है, लॉजी मतलब स्टडी, और संधि विच्छेद करके, हाँ, संधि विच्छेद करके कुछ कुछ करके उसको लिख दो, चाहे उसमें 3-4 नंबर 2-3 नंबर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है उस चीज़ में। तो हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो, और पेपर 1 में नंबर ठीक आए तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक होगा, 2-3 मार्क्स तो दे दिया होंगे उस चीज़। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। नहीं, अगर लॉजिकल गेस है तो ऑफ कोर्स उसके मार्क्स बनते हैं। वेरी वेल। अच्छा, मेन से अगर इंटरव्यू की तरफ आगे बढ़े तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने क्या किया? प्रिपरेशन का मेथड क्या है इंटरव्यू के लिए? 3-fold अप्रोच मैं बोलूँगा उस चीज़ को। पहला चीज़ है कि अपने आपको डेफ और करंट अफेयर्स में काम करना है, तो वही आपके डेफ में जो जो पॉइंटर्स हैं उसके अराउंड आप क्वेश्चंस खुद से सोचिए, या कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसके आंसर्स बनाइए। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, जो जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसमें आप बोलोगे क्या वो चीज़ अब लिखो पेपर में और उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि मैं बोलना डिफिकल्ट हो जाता है कितनी बार, आपको पता होती है चीज़ें पर वो नहीं निकलती है मुँह से उस टाइम, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैम, आई थिंक वही जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ कि अब 10-15 मॉक इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि उससे पढ़ना एक तरफ होता है, लिखना एक तरफ होता है, बोलना इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो वो आपको मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस से ही आता है, तो मॉक इंटरव्यूज। और तीसरा मैम आई थिंक डिस्कशन विद फ्रेंड्स, जो लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एक ग्रुप बनाइए, 4-5 लोग का ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ रेगुलर डिस्कस कीजिए, चाहे वो करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं आप, या क्वेश्चन आंसर एक दूसरे का मॉक टेस्ट ले रहे हैं। तो हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, और हम वही शाम को गैदर होते थे, डिस्कस करते करंट अफेयर्स पे, और रात को एक दूसरे का 15-20 मिनट का मॉक लेते थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैम वो हेल्प करता है आपस में। तो आई थिंक पूरे 3 महीने 2-2.5 महीने के लिए यही चीज़ करी थी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की तैयारी अकेले करना बड़ा मुश्किल है ना? अकेले हम क्या करेंगे तैयारी, उसमें इंटर बोलना होता है, उसमें अकेले से कितना ही बोल देंगे, तो लोग चाहिए आपको बोलने के लिए आपस में। जैसे बोलते हैं ना कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल सब दुनिया जहान छोड़ के ही तैयारी हो पाएगी, बट ऐसा है नहीं। मैं तो नहीं मानता ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि कब तक अकेले में पढ़ लेंगे आप, इंसान सोशल एनिमल है, पढ़ते ही हैं, तो आपको कोई दूसरा इंसान सामने नहीं मिलेगा तो आदमी का आई थिंक मेंटल अनस्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से आ सकती है। तो पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, जो भी आपके आसपास आपके जो आपको जानते हैं, उनको आई थिंक क्लोज रखने की ज़रूरत है। इतना क्लोज नहीं कि आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना दूर भी नहीं आपकी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस बनाने की जरूरत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पड़ती है। और
सपोर्टिंग पिलर्स हैं मैम आपके वो, जब क्योंकि एग्जाम में डाउनफॉल तो आता ही है, ऐसा नहीं है कि ठीक कुछ होते हैं किस्मत वाले, पर जो अधिकतर मैक्सिमम जनता है उनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल मैम आता ही आता है। तो उस टाइम आपको चाहिए कि जो आपको उठाएं, दोबारा हिम्मत दें, सपोर्ट करें। तो इसलिए लोगों को करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से मैम, प्रीलिम्स में, मेंस में, हर स्टेज में। That's a very wise sort of message that you have, and again it is very very necessary. अगर हम यही चीज़ें नहीं समझेंगे तो ये काम करना बहुत कठिन, मतलब जितना कठिन है उससे और कठिन हो जाता है वो, कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, इतनी अच्छी सी बात करने के बाद लगेगा कि कैसा सवाल है, लेकिन पेपर लिखते हुए ना ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं कि नहीं मैंने इसी पेन से लिखना है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं ये पेन है जिससे मेरा पेपर थोड़ा ढंग से लिखा जाता है? हाँ मैम, तो मेरे को लगता है तीनों मेंस में अपने पायलट V5 यूज़ किया है। मतलब मैं तो बहुत लॉयल रहा उस पेन के लिए थ्रू आउट माई जर्नी, क्योंकि मेरे को मेरी जो रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल फिट करता है। मैं वो तेज़ लिखता है, अच्छी डार्क इंक है उसकी, स्मूथ है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी जो वो है रिफिल है, मतलब बहुत लंबा भी चलता है वो। तो 3-4 मेंस के बारे में आता है एक पेन, तो काफ़ी मेरा वो फेवरेट पेन था। बट उसमें एक बहुत बड़ा इशू था, उसकी निब जो है वो मुड़ जाती है अगर थोड़ा सा भी आपने प्रेशर डाला उस। तो विद प्रैक्टिस आई गेस आप वो कंट्रोल कर सकते हो उसकी पावर्स को। तो बट आई एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि ना जब बाकी ऑफ कोर्स सारी ज़िंदगी पढ़ाई करी है, सब कुछ है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि उस पेन के प्रति आपका इतना कुछ लगाव हो जाए। वो सिर्फ इसी एग्जाम के अंदर है कि नहीं, लोगों को लगता है पेन का फर्क पड़ता है, मैं तो पड़ता है मानता कि नहीं हूँ, पड़ता है? मैं तो वही मैम कर रहा हूँ, लॉयल्टी हो गई थी मेरे वो एकदम, जो होती है ना जो एक वॉरियर की तलवार होती है जो बहुत पसंद होती है उसको, तो वो पायलट V5 पेन मेरे लिए मेरी तलवार थी आई गेस। पूरे तीनों मेंस में साथ दिया उसने, और मुझे लगता है काफ़ी पसंद, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पेन वो। मतलब लगाव हो जाता है। वेल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, यू हैव अ वंडरफुल टेक ऑन द वे टू प्रिपेयर. Congratulations again. Thank you so much, ma'am. Thank goodness that it has happened. All the best to you. Have a great time. Thank you so much.